students, today's topic is analysis of variance ANOVA. एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमारे टू वर्ड से मिलके बना हुआ है. फर्स्ट इज एनालिसिस, सेकंड इज वेरिएंस. द मीनिंग ऑफ एनालिसिस इज द केयरफुल एग्जामिनेशन एंड द मीनिंग ऑफ वेरिएंस इज difference between two or more statistical data. Though the study of the variance is done in the statistics, so the analysis of variance is the statistical technique or the tool. So we can say general meaning of analysis of variance is the careful examination of the differences between two or more statistical data, and it is a statistical technique. Fine. Or these variances may be between the samples or within the samples. Fine. ये जो भी differences आएंगे, variances आएंगे, वो क्या होंगे? Between the samples or within the samples. Fine. Total variance will be variance between the samples plus variance within the samples. These are our samples. Sample 1, sample 2 and this is sample 3. सैम्पल 1 में आप 10 आइटम्स का स्टडी कर रहे हैं, डेट इज योर विद इन द सैम्पल. फाइन. और सैम्पल 2 के अंदर आप चाहे 7, 10 कितने भी आइटम्स की स्टडी कर रहे हैं, डेट इज योर विद इन द सैम्पल्स. फाइन. और बिटवीन द सैम्पल डेट मीन सैम्पल 1, सैम्पल 2 और सैम्पल 3, इनके बीच में आप जो स्टडी करेंगे डेट इज योर between the samples. Analysis of variance is known as variance ratio or the F test. Fine. The formula of F will be variation between samples divided by variation within samples. देखिए, variation between samples divided by variance between samples. This is the basic term used in this chapter. The basic concept behind the technique of ANOVA is there would be 3 or more population mean. Fine. कितने होंगे? 3 और more आपके पास samples या population mean होंगे. First. Second, क्या हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं? तो आपके पॉपुलेशन मीन्स होंगे बराबर होंगे. दिस इज द बेसिक हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ऑफ दिस टेक्निक कि μ1 विल बी इक्वल टू μ2, μ2 इक्वल टू μ3 और μk, दैट मीन्स k इक्वल्स टू पॉपुलेशन. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस विल बी μ1, μ2, μ3 will not equal. That means at least one population mean is not equal to another. Analysis of variance is originated by R.A. Fisher in 1920s. First, we used it in the field of agriculture and the geology, and later on the other fields. Definitions of ANOVA from the Fisher side, that is, analysis of variance is the technique used to estimate the separation of variance attributable to one group of cases from the variance attributable to other group. Owen Davis ने the analysis of variance is the essentially a method of analyzing the variance to which response is subject into its various components corresponding to the sources of variations which can be identified. In short, we can say analysis of variance is the classification and the cross classification of the statistical data with the view of testing whether the mean of specific classification differ significantly or they are homogeneous. वो क्या अलग है या सेम है. फाइन. Assumptions of the analysis of variance, that is the sum of the variance of different components are equal to the total variance. आपने ऊपर पढ़ा था total variance will be वेरिएंस बिटवीन द सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन द सैंपल्स. तो सब वेरिएंस का सम क्या होना चाहिए हमारा? इक्वल टू टोटल वेरिएंस. नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ द सैंपल्स आर सेलेक्टेड. कैसे सेलेक्ट होनी चाहिए? इंडिपेंडेंटली एंड रेंडमली. अदरवाइज द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विल बी लेसेंड.
वो कम हो जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिलेशन और द रिलेशन. Fine. Next, the population from which samples have been selected will be normally distributed. Utility of ANOVA, that is the analysis of variance, can be used to test the significance of the linearity of regression, simple multiple correlation. That means वो सेम रेशियो में ही रिलेटेड है और कितने रेशियो से हैं वो किस में आप देखते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में. नेक्स्ट इज होमोजेनिटी ऑफ द डेटा कैन बी स्टडीड इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. आपने ऊपर देखा कि मीन की जो हमने क्लासिफिकेशन और क्रॉस क्लासिफिकेशन की है स्टैटिस्टिकल डेटा का, उसमें हमने क्या स्टडी की थी, वेदर दे आर डिफर सिग्निफिकेंटली और दे आर होमोजीनियस. तो होमोजेनिटी की आप कहाँ देखते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में. द डेटा आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट सैंपल्स इज सिग्निफिकेंट. द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस ऑफ इक्वालिटी अमंगस्ट द सेवरल मीन. ये हाइपोथेसिस हमने ऊपर डिस्कस की थी, दैट इज μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 till end. Techniques of analysis of variance, that is one way classification. Next is two way classification. One way classification, difference will depend upon one factor or influenced by one factor. The difference depends upon two factor or influenced by the two factor, that is known as two way classification. One way classification के method कौन से हैं, first is direct, indirect and coding method, जिसको कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. टू वे क्लासिफिकेशन, डेटा क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू फैक्टर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ टू फैक्टर्स ऑन द डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स. वी आर डिस्कसिंग द टेक्निक ऑफ एनोवा, that is one way classification by an examination question. This is an examination question. The table below gives the yield of wheat in 6 blocks. ये आपके क्या है, blocks given है. These are the varieties A, B, C and D. The test of significance of the difference between the yield of 4 varieties. आपको क्या करना है, इन 4 वैरायटीज के बीच में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना है. सिर्फ हम एक ही फैक्टर की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ अप्लाई हो रहा है वन वे क्लासिफिकेशन. अगर आपको दोनों में, ब्लॉक्स में और वैरायटीज दोनों में निकालना होता तो वो होता टू वे क्लासिफिकेशन. ये आपको डेटा गिवन है. नाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन. एज वी डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो, द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनोवा इज द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस. तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, हम नल हाइपोथेसिस अज्यूम करेंगे, दैट इज μ1 इक्वल्स टू μ2 इक्वल्स टू μ3 इक्वल्स टू μ4. यहाँ पे अपने 4 क्या दिए हुए हैं, वैरायटीज दिए हुए हैं, 4 सैंपल्स दिए हुए हैं. इन 4 सैंपल्स के जो हमारे मीन है, x बार है, वो सेम होते हैं. यही अनोवा का बेसिक अजम्पशन है. फाइन. नेक्स्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी कि जो भी हमारे सैंपल्स के अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, इक्वल नहीं है. μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3, μ3 इज नॉट इक्वल टू μ4. फाइन. दिस इज आवर स्टेप 1. नेक्स्ट इज स्टेप 2, जिसका भी हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पूछा गया है वन वे क्लासिफिकेशन में, उसको हम कॉमनर अरेंज कर देंगे. A variety, B variety, C variety and D variety. Fine. This is X1. A के जो भी डेटा थे उसको हमने क्या बोल दिया है, X1. B के जो डेटा थे उसको X2. C के जो डेटा थे वो X3 है. D के जो डेटा थे X4 है. उसको हमने कॉलम वाइज अरेंज कर दिया है. आप ऊपर क्वेश्चन में चेक कर सकते हैं. दिस इज अ फर्स्ट. सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, इनके स्क्वायर्स निकालने होते हैं. X1 का स्क्वायर है ये सब. नेक्स्ट X2 का स्क्वायर कर दिया इधर. नेक्स्ट X3 का स्क्वायर हो गया है और नेक्स्ट X4 का स्क्वायर हो गया है. फाइन. ये टेबल बन गई है. नीचे आपने सबके टोटल निकाल लिए हैं. थर्ड स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर.
करेक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, दैट इज टी स्क्वायर अपॉन एन। टी इज टोटल ऑफ द वैल्यूज, वैल्यूज का टोटल होगा ऑफ ऑल द सैंपल्स, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम हैं आपके इन ऑल द सैंपल्स। फाइन, तो इसको क्लियर करते हैं। T इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल बोल सकते हैं आप इसको, सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 प्लस सिग्मा x3 प्लस सिग्मा x4। जितनी भी वैल्यूज आई ये A में उसका टोटल है, ये B का टोटल है, और ये C का टोटल है, और ये D का टोटल है। जब हम इनको का टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T, तो वो आ गया है हमारा 391। इसका हमें स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाय n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम इन ऑल द सैंपल्स, और उसको आप कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज। इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके 4, और नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी, दैट इज 6, 24। तो डिवाइडेड बाय 24, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई है आपकी 6370, दैट इज योर करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ द स्क्वायर्स, दैट इज TSS। आपने ऊपर स्क्वायर किए थे ना इनके, उनका सबका टोटल आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट इज 1939, इधर आ गया 2077, ये है अपना 1631, इधर है 1156। तो जितने भी स्क्वायर्स थे उनका टोटल माइनस क्या होता है, करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर आपकी वैल्यू क्या निकली थी ऊपर 6370, तो आपकी फाइनल वैल्यू आ गई है TSS की, दैट इज 433, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। स्टेप नंबर 5 में क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स फाइंड आउट करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n1, सिग्मा x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n2, प्लस सिग्मा x3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n3, प्लस सिग्मा x4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n4, माइनस करेक्शन फैक्टर। आप ये देखेंगे कि करेक्शन फैक्टर को हमने ऊपर टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में से भी लेस किया था, और यहाँ सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स में भी हमें लेस करना है। फाइन, तो यहाँ जो वैल्यू आई थी हमारी सिग्मा x1 की, इसका होल स्क्वायर कर देंगे 105 का होल स्क्वायर, इधर सिग्मा x2 की कितनी वैल्यू है हमारी, दैट इज 109, इसका होल स्क्वायर हो गया है यहाँ। सिग्मा x3 की वैल्यू है हमारी 97, सिग्मा x4 की वैल्यू है हमारी 80, इनका होल स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय n1। n1 दैट इज नंबर ऑफ आइटम इन पर्टिकुलर सैंपल। सैंपल नंबर A में कितने आइटम है हमारे, दैट इज 6। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सब में अपने सेम थे, दैट इज 6 6 6। फाइन, नाउ इसको आपने सॉल्व कर लिया, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, दैट इज 1837.5, इसको सॉल्व किया, दैट इज 1980.17, इसको 1568.17 प्लस 1066.67 माइनस करेक्शन फैक्टर। फाइन, जो कि स्टेप 3 में फाइंड आउट किया था, सॉल्व कर दिया आपने, वैल्यू आ गई 82.51। Fine, that is our SSB, sum of squares between the samples. Now, degree of freedom, that is C minus 1, number of columns minus 1, number of columns है हमारे 4, minus 1 कर देंगे तो degree of freedom कितनी आ गई है अपनी 3, किसकी आ गई है between the samples. Next step is sum of the squares within the samples. एज यू नो, जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपको डिस्कस किया था टोटल वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होता है, वेरिएंस बिटवीन द सैंपल प्लस वेरिएंस विद इन द सैंपल। तो TSS इक्वल्स टू क्या होता है, SSB प्लस SSW। फाइन,
नाउ TSS गिवन है और SSB गिवन है, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज SSW। तो ये हो गया हमारा 433 माइनस 82.51 दैट इज 350.49, दैट इज SSW। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो हमारा विद इन द सैंपल है उसका फॉर्मूला होता है N-C, एंड दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैंपल्स। वो कितने निकले थे अपने, हमने किया था ऊपर C मल्टीप्लाई बाय R, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपने आए थे 24। अगर आप इसको इंडिविजुअली भी काउंट करेंगे वो भी आपका क्या होगा 24, तो ये हो गया आपका 24 माइनस C नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे, दैट इज 4, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई अपनी 20। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, टेबल से वैल्यू फाइंड आउट करोगे इसलिए। नाउ द 7th स्टेप दैट इज एनोवा टेबल। एनोवा टेबल के आपके ऊपर की जो हेडिंग्स होती है वो सेम होती है, दैट इज सोर्सेज ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ द स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वेरिएंस एंड वेरिएंस रेशियो। सोर्सेज ऑफ वेरिएंस आपको कहाँ से मिले हैं, बिटवीन द सैंपल्स और विद इन द सैंपल्स। बिटवीन द सैंपल्स अपना ऊपर कितना आया था, दैट इज 82.51, और विद इन द सैंपल्स था हमारा 350.49। फाइन, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं 3 and 20। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, दैट इज MSB, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स, और MSW मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स, दैट इज SSB डिवाइडेड बाय C-1। SSB है आपका ये, डिवाइडेड बाय 3 कर दिया आपने, तो वैल्यू आ गई आपकी 27.50, और MSW दैट इज SSW डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 17.50। ये टेबल आपको क्लियर है। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रेशियो। वेरिएंस रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा वेरिएंस बिटवीन द सैंपल्स डिवाइडेड बाय वेरिएंस विद इन द सैंपल्स। बिटवीन द सैंपल हमारा आया है MSB और विद इन द सैंपल आया है हमारा MSW। इनको डिवाइड कर दिया तो F आ गया आपका 1.57। एक बार आपको कंफ्यूजन होता है कि कौन सी वैल्यू हमारी ऊपर आएगी और कौन सी नीचे, तो आपको याद रखना है ग्रेटर वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर वेरिएंस। दिस इज अ टेबल ऑफ F डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप F की टेबल वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। आपको बिटवीन द सैंपल्स की वैल्यूज किस में देखनी है, DX में, और विद इन द सैंपल्स की वैल्यूज देखनी है आपको DY में। DF बिटवीन द सैंपल था हमारा 3 और DF किसमें, विद इन द सैंपल था हमारा 20। तो DX में आपको कहाँ आना है 3 पे, और इधर आना है 20 पे। ये है आपका 20, तो 3 और 20 कहाँ पे मैच कर रहे हैं आपके, ये दैट इज 3.10। ये हो गई आपकी F की टेबल वैल्यू, जिसको कि हम हमारी कैलकुलेट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। 1.57 है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबल वैल्यू थी हमारी 3.10। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम है टेबल वैल्यू से, दैट मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। इंटरप्रिटेशन क्या हो गया अपना, द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ F लेस देन द टेबल वैल्यू ऑफ F at 5% level of significance, hence the null hypothesis is accepted and concluded that the difference is not significant। कई केसेस में क्या होता है, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा हो जाती है टेबल वैल्यू से, तब क्या होगा H0 तो क्या हो जाएगी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या होगा, देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑल द सैंपल मीन्स और द पॉपुलेशन मीन्स। वी आर डिस्कसिंग टू वे क्लासिफिकेशन। जैसा कि आपको नाम से पता लग रहा है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन वन फैक्टर इज नोन एज वन वे क्लासिफिकेशन, और इसमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी आप एक ही फैक्टर का फाइंड आउट करते हैं। Thereafter two-way classification, classification based upon two factors,
दैट मीन्स जो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस आप फाइंड आउट करेंगे वो 2 फैक्टर्स का फाइंड आउट करेंगे. नाउ व्हाट इज द TSS? In one-way classification, total sum of squares equals to sum of squares between the samples plus sum of the squares within the samples होता है. But in two-way classification आप क्या करते हैं? Total sum of squares, that is TSS, equals to sum of squares between the columns plus sum of the squares between the rows प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिडुअल फाइंड आउट करते हैं. इसी कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है जिससे हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एवरेज मंथली सेल ऑफ 4 सेल्समैन इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेरिटरीज. मेक एन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल फ्रॉम द अबव फैक्ट्स एंड गिव योर कॉमेंट्स. टेरिटरी या सेल्समैन किसी एक का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करते तो वो होता वन वे क्लासिफिकेशन. यहाँ हम इन दोनों का टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करेंगे बिकॉज क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ऊपर जो भी फैक्ट दिए गए हैं उस पर आपको कमेंट करना है, इनका टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फाइंड आउट करना है. सो वी आर यूजिंग टू वे क्लासिफिकेशन. एज यू नो ऊपर हमारे 2 फैक्टर्स थे. फर्स्ट इज सेल्समैन, सेकेंड इज टेरिटरी. तो फर्स्ट जो हमारी स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, वो भी हमारी 2 ही बनेगी. दैट इज H0 इक्वल्स टू μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3 इक्वल टू μ3. दैट मीन्स एवरेज मंथली सेल्स ऑफ एवरी सेल्समैन इज इक्वल. H अल्टरनेटिव क्या है हमारी? μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3 इज नॉट इक्वल टू μ4. नेक्स्ट इज टेरिटरी. इसकी भी नल हाइपोथेसिस क्या होगी? μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3. दैट मीन्स एवरेज मंथली सेल्स बिटवीन द टेरिटरीज आर इक्वल. फाइन. नाउ H0 इक्वल्स टू μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2 इज नॉट इक्वल टू μ3. पूरी टेबल हमने इसको क्वेश्चन से कॉपी किया है बट इसकी लेबलिंग हम कर रहे हैं. दिस इज आवर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4. दिस इज रो 1, रो 2, रो 3. R1 का टोटल है 20, R2 का है 24, R3 का 28 और कॉलम वाइज टोटल आप इधर लिख रहे हैं 21, 18, 15 और 18 और पूरा टोटल आ गया आपका 72. नेक्स्ट वी विल मेक अ स्क्वायर टेबल. जैसा कि हमने वन वे क्लासिफिकेशन में भी डेटा का स्क्वायर किया था, ऐसे ही हमने यहाँ पे अलग स्क्वायर टेबल बना ली है. 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81. एज इट इज सारी वैल्यूज का स्क्वायर हो गया है. नाउ द टोटल. इसका टोटल है आपका 106, इसका टोटल है 154, इसका टोटल है आपका 202. इधर वर्टिकली इधर है इसका टोटल 155, इसका है 116, 77 और 114. तो ये 2 टेबल बनाने के बाद में नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर. ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल का फॉर्मूला. T इक्वल्स टू टोटल ऑफ ऑल द वैल्यूज इन ऑल द सैम्पल्स. तो जितने भी वैल्यूज है इन सभी सैम्पल्स में उनका टोटल. तो वो कैसे आएगा? इधर इसका टोटल है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है. अगर आप इसको रो वाइज भी करते हैं तो वो सेम ही आएगा. यहाँ देखिए ये 72 है. यहाँ हम कर रहे हैं कॉलम वाइज. ठीक है, तो कॉलम 1 का टोटल लिख लिया है. तो यहाँ पे आपने पूरे टोटल लिख के ये क्या हो गया है आपका 72. दैट इज T. नाउ द फॉर्मूला ऑफ करेक्शन फैक्टर दैट इज T स्क्वायर अपॉन N. T का स्क्वायर हो गया 72 का स्क्वायर. फाइन. N इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैम्पल्स. इसमें जितने आइटम्स है उसका, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू R. C दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स जो कितने हैं हमारे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ रोज 1 2 3 दैट इज 12. तो इधर आ गया आपका 12. फाइन. इसको सॉल्व किया तो वैल्यू आ रही है आपकी 432. दिस इज अ करेक्शन फैक्टर. नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसका हमारा क्या फॉर्मूला होता है? C1 स्क्वायर टोटल प्लस C2 स्क्वायर टोटल प्लस C3 स्क्वायर टोटल प्लस C4 स्क्वायर टोटल माइनस करेक्शन फैक्टर. ये देखिए जो अपने स्क्वायर टेबल है
उसके ये जो इनका सबका टोटल यहाँ लिख दिया है माइनस करेक्शन फैक्टर, जिसको आपने सॉल्व किया तो आपकी वैल्यू आ गई है 30, दैट इज योर TSS। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, TSS में आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होता है, CR -1। CR हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, दैट इज 12 -1 इक्वल्स टू 11, दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। Now the next step, calculation of sum of the squares between the columns. Find, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, that is सिग्मा C1 का होल स्क्वायर, सिग्मा C2 का होल स्क्वायर, सिग्मा C3 का होल स्क्वायर है ये, और सिग्मा C4 का स्क्वायर है ये। NC1 नंबर ऑफ आइटम्स इन कॉलम 1, नंबर ऑफ आइटम्स इन कॉलम 2, नंबर ऑफ आइटम्स इन कॉलम 3 और नंबर ऑफ आइटम्स इन कॉलम 4, और ये है हमारा माइनस करेक्शन फैक्टर। तो ये जो हमारी इनिशियल टेबल थी उसकी जो सिग्मा C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 21, यहाँ देखिए, और नंबर ऑफ आइटम्स इन अ कॉलम 1 2 3 सब में सिमिलर है इसलिए 3 3 आ गया है। इधर 18 का होल स्क्वायर, 15 का होल स्क्वायर और 18 का आपने TSS में फाइंड आउट किया था स्क्वायर टेबल से, ये हमारी इनिशियल टेबल है। फाइन, इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 6। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो SSC में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके, दैट इज 4। फाइंड -1, तो C -1, 4 -1 दैट इज 3। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर्स बिटवीन द रोज। जैसे हमने कॉलम्स का फाइंड आउट किया था वैसे ही हम रोज का फाइंड आउट करेंगे। उसमें हमने कॉलम का टोटल लिया था, इधर हम रो का टोटल लेंगे। फाइन, सिग्मा R1 का होल स्क्वायर, सिग्मा R1 है आपका ये, सिग्मा R2 का होल स्क्वायर, सिग्मा R3 का होल स्क्वायर, इन सब का आपने होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय इट इज NR1, NR2, NR3। फाइन, अब NR1 में आपके कितने आइटम्स है, 1 2 3 4, तो इधर आ गया 4। NR2 में भी यही है और इसमें भी यही है, तो 4। फाइन, इसको आपने जब सॉल्व किया वैल्यू आ रही है आपकी दैट इज 8। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम में रो में फाइंड आउट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 3 -1, R -1 that is 2. This is your degree of freedom. Now the calculation of SSE, sum of the squares of residual. As you know, TSS आपने फाइंड आउट कर लिया है, SSC और SSR भी फाइंड आउट कर लिया है, रिमेनिंग बचा आपका SSE जो कि आप बैलेंसिंग फिगर में आप फाइंड आउट करेंगे। TSS माइनस SSC प्लस SSR, इनकी वैल्यूज यहाँ लिख दी है आपने, आंसर इज 16। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में आपको क्या करना है, C -1 मल्टीप्लाई बाय R -1। फाइन, तो दैट इज योर 6। 4 -1 मल्टीप्लाई बाय 3 -1 दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 equals to 6. Now ANOVA table. This is an ANOVA table of two-way classification जिसके आपकी headings सेम ही रहेगी जैसे कि वन वे में थी। नाउ द सोर्सेज ऑफ वेरिएंस, इसमें हमारे 3 सोर्स हैं, बिटवीन द कॉलम्स, बिटवीन द रो एंड रेसिडुअल। SSC फाइंड आउट हो चुका है, SSR, SSE, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपने ऊपर कैलकुलेट कर ली है। नाउ द वेरिएंस, वेरिएंस का हमारा क्या फॉर्मूला होगा इधर, SSC डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, degree of 6 divided by 3 that is 2. Same is here, SSR divided by DF that is 8 divided by 2 equals to 4. Now 16 divided by 6 that is 2.67. This is our variance. Now the calculation of variance ratio. वेरिएंस रेशियो इसमें थोड़ा डिफरेंट है। इसमें क्या करना है, आपने जो बेसिस लेना है वो क्या लेना है, रेसिडुअल को बेसिस लेना है। तो आप क्या करेंगे, MSC डिवाइडेड बाय MSE, ये क्या हो गया, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द कॉलम्स, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन द रो, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर। फाइंड,
तो अब आपको क्या करना है, वेरिएंस रेशियो एफ रेशियो फाइंड आउट करना है, जिसका हमारा फॉर्मूला क्या होगा, MSC डिवाइडेड बाय MSE, और इसका क्या होगा, MSR डिवाइडेड बाय MSE। तो देखिए 2 डिवाइडेड बाय 2.67 दैट इज 0.75, 4 डिवाइडेड बाय 2.67 दैट इज 1.50। दिस इज आवर एफ रेशियो। नाउ ये हमारी आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू, इधर आ गया आपका टोटल। नाउ वी विल स्विच अपॉन द एफ टेबल। अब एफ टेबल में आप कैसे लेंगे, dx dy, dx आपको क्या लेना है, कॉलम का फाइंड आउट करेंगे, तो dx क्या हो जाएगा, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, फाइन। और dy आपको क्या लेना है, इसका लेना है रेसिडुअल का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने जो वेरिएंस फाइंड आउट किया है उसका बेसिस क्या है, रेसिडुअल है, फाइन। तो 3 और 6 का फाइंड आउट करेंगे, इधर आप करेंगे 2 का और 6 का, फाइन, dx और dy। नाउ द टेबल, दिस इज अ एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आपको कॉलम्स का फाइंड आउट करना था 3 and 6, 3 लेना है ऊपर, 6 लेना है इधर। तो इनका जो पॉइंट है 3 और 6 का, डैट इज 4.76, टेबल वैल्यू आ गई। नाउ रोज के लिए 2 और 6 था, 2 और 6 में देखिए इधर 2 तो है इधर और 6 है ये, डैट इज योर 5.14। इस टेबल वैल्यू को हम कंपेयर कर रहे हैं कैलकुलेटेड वैल्यू से। ये देखिए ये है हमारी टेबल वैल्यूज, कैलकुलेटेड वैल्यू इसकी आई थी हमारी 0.75 और इसकी आई थी 1.50। डैट मीन्स जो टेबल वैल्यू है हमारी ज़्यादा है और कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमारी कम है। कैलकुलेटेड वैल्यू कम है टेबल वैल्यू से, डैट मीन्स हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ सेल्समैन एंड बिटवीन द टेरिटरीज। दो ही हमने हाइपोथेसिस ली थी, दोनों में ही क्या हो रहा है, टेबल वैल्यू जो है हमारी ज़्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से। डैट मीन्स हमारी जो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई है और द डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट। What is the coding method? It is also a technique of analyzing a variance, but where we use it, when the values of the samples or the data are very large and the calculations are lengthy. So to simplify that, we use the coding method. In coding method, we add or subtract or multiply or divide by a common factor. ये कॉमन फैक्टर, आप ये पूरा जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा ईच एंड द एवरी वैल्यू ऑफ द सैंपल। सभी वैल्यूज पे आप एप्लीकेबल करेंगे जो भी आपकी टेबल पे हैं, देन यू विल कैलकुलेट द एफ रेशियो। कोडिंग मेथड से हमारा एफ रेशियो कुछ चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है, बट कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए वी यूज द कोडिंग मैथड। देखिए कोडिंग मैथड इज द मैथड ऑफ कंप्यूटिंग द एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. इट इज यूजफुल in the case when the values are large and the calculations become lengthy. In such as cases, the values are sample are divided or multiplied by the common factor, or a common factor is deducted or the added to the values of the samples by the coding of data. The F ratio remain unchanged. स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन टेबल जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज कितनी बड़ी हैं. अब हम क्या करेंगे, इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज को देखते हैं. एक्सट्रीम वैल्यूज है 300, 145. तो इनके सेंटर या नियर बाय की कोई भी हम एक वैल्यू एज ए कॉमन फैक्टर मान लेते हैं. यहाँ हमने क्या किया है, 200 को कॉमन फैक्टर माना है. सो वी आर डिडक्टिंग 200 फ्रॉम ईच वैल्यू. फाइन. तो 0, -10, 40, 30, 70, -50, 50, 100, -55,
170 -20, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। इसके बाद भी आप देख रहे हैं ये वैल्यूज भी जो आंसर में आई है वो भी काफ़ी बड़ी है। तो अब आप अगेन आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप और लेंगे कि हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे। अगर वैल्यूज छोटी होती तो सिंपली यहीं पे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, लेकिन अभी भी वैल्यूज बड़ी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें से 10 को डिवाइड कर रहे हैं जिससे और वैल्यू हमारी सिंप्लीफाई हो जाए। सो 0 -1 4, इधर आ गया 3 7 -5, यहाँ आ जाएगा 5 10 -5.5, इधर 10 7 एंड -2। अब आप इनकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर पाएंगे। 1 वे और 2 वे दोनों ही अनोवा इस टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। हमारे 1 वे और 2 वे के दोनों के हमारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। यू कैन डू दैट प्रोसीजर फर्दर बाय योर सेल्फ एंड कॉमेंट मी कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं। एनोवा इन लैटिन स्क्वायर्स, लैटिन स्क्वायर्स से रिलेटेड हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने उसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, स्टैंडर्ड लैटिन स्क्वायर इसको डिस्कस किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। टुडे वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन लैटिन स्क्वायर एनोवा। यू नो 1 वे एनोवा में हमने स्टडी की थी टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द सैंपल्स प्लस सम ऑफ द स्क्वायर्स विद इन द सैंपल्स। दिस इज एनोवा टेबल जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से TSS बना है। 2 वे एनोवा में हमने डिस्कस किया था TSS क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द कॉलम, सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द रोज और सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल्स। इन तीनों के एडिशन से हमारा TSS बनता है। नाउ एनोवा इन लैटिन स्क्वायर्स, एज यू नो 1 वे एनोवा में हमने स्टडी की थी 1 फैक्टर की, 2 वे एनोवा में हमने स्टडी की थी 2 फैक्टर्स की। नाउ एनोवा इन लैटिन स्क्वायर में हम स्टडी किसकी करते हैं, 3 डायमेंशनल स्टडी करते हैं। सो लैटिन स्क्वायर इज बेस्ड अपॉन 3 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन। इसमें TSS क्या होता है, SSC प्लस SSR प्लस SST प्लस SSE। TSS that is total sum of squares, SSC sum of squares between the column, SSR sum of squares between the row, जो कि उसमें 2 वे में भी था। Now additional इसमें क्या आ गया है, SSTR या SST that is sum of squares between the treatments, ये हमारा 3rd डायमेंशन है। Now SSE भी 2 वे में था, that is sum of the squares of residual। तो इन चारों का ही टोटल क्या होता है, TSS होता है। ये देखिए इस एनोवा टेबल जो कि लैटिन स्क्वायर पे बेस्ड है, इसमें 1 2 3 और ये 4 फैक्टर से हमारा क्या बना है, that is TSS। इसी पे बेस्ड हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लैटिन स्क्वायर से रिलेटेड जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप से कुछ वैरायटीज और ट्रीटमेंट क्वेश्चन में नजर आएंगे। दैट इज द फॉलोइंग इज अ लैटिन स्क्वायर लेआउट डिजाइन व्हेन 4 वैरायटीज of seeds are being tested, set out the analysis of variance table and state your conclusion। This is a question table जिसमें आप देख रहे हैं कि जो हमारी वैल्यूज है बड़ी है कैलकुलेशन के लिए, सो वी यूज कोडिंग मेथड। कॉमन फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से और वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखेंगे हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है। इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज है 14 और 25। इसके मिड की कोई भी वैल्यू ले लेंगे, हम ले रहे हैं यहाँ पे 19। अब 19 को हम लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन सभी वैल्यूज से, जिससे हमारी वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो -19 दैट इज 6, -19 दैट इज 0, -19 दैट इज 0, -19 दैट इज -2, -19 that is 4, -19 equals to 0, -19 equals to -5, -19 equals to 1, -19 equals to 1, -19 equals to 2, -19 equals to -2, -19 equals to 2। इधर भी सेम वही प्रोसीजर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, इधर आएगा -1 +1 इक्वल्स टू 4।
तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई है। अब हमारी ये नई टेबल बन गई है, इसी से बेस्ड हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। After simplifying our table, the next step will be formulation of hypothesis. Formulation of hypothesis में आपने देखा यहाँ हमारे 3 dimensions है, तो हमारी 3 null hypothesis होगी, that is H not equals to all rows are equally fertile. That means yield in respect of rows are same. और second है all columns are equally fertile. That means yields in respect of columns are same. Third है all treatments और varieties are equal. That means treatments are same in respect of yield. तो ये हो गई हमारी H नॉट। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, μ1 is not equal to μ2 is not equal to μ3 is not equal to μ4. That means ये all rows are not fertile equally, our columns are not equally fertile, all treatments और varieties are not equal. ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गई है। नेक्स्ट हमने इस टेबल को ऊपर से कॉपी किया है जो अभी हमने कोडिंग मेथड से सिंप्लीफाई की थी, और उनको क्या लेबलिंग दे दी है, दिस इज कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, दैट इज R1, R2, R3, R4। फाइन। नाउ अब जो वैरायटीज थी उनको इसमें से हटा दिया ABCD को, तो इनका हम टोटल करेंगे। R1 का टोटल है ये, R2 का ये है, R3 का ये है, R4 का ये है। कॉलम वाइज टोटल कर देंगे इनका, 4 0 3 -3, और ये आ गया आपका ग्रैंड टोटल। नाउ स्क्वायर्स टेबल्स बनती है, आपको पता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 0 स्क्वायर 0 स्क्वायर, -2 स्क्वायर 4, ऐसे ही 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25। तो इस टाइप से हमने हर का स्क्वायर करके ये स्क्वायर टेबल भी प्रिपेयर कर ली है, और इधर रो वाइज टोटल कर दिया है, और इधर हमने कॉलम वाइज टोटल लिख दिया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन फैक्टर। दिस इज आवर फर्स्ट इनिशियल टेबल जिससे कि हम करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। करेक्शन फैक्टर का क्या फॉर्मूला है, T स्क्वायर अपॉन N। T स्क्वायर दैट मीन्स टोटल ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द सैंपल्स। आपके सैंपल में जितनी भी वैल्यूज गिवन है उनका टोटल। तो इन सब का टोटल कैसे हम निकालेंगे, चाहे आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, दोनों का ग्रैंड टोटल सेम ही आएगा। इधर हम क्या ले रहे हैं, कॉलम वाइज ले रहे हैं, तो सिग्मा C1 प्लस सिग्मा C2 प्लस सिग्मा C3 प्लस सिग्मा C4, इन चारों का टोटल किया, दैट इज 4। तो इधर आ गया 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, एंड दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन ऑल द सैंपल्स। इन पूरे सैंपल में नंबर ऑफ आइटम्स क्या है, उसको आप शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, C इंटू R। नंबर ऑफ कॉलम्स है 4 और नंबर ऑफ रोज है आपकी 4, 4 इंटू 4 दैट इज 16, तो डिवाइडेड बाय 16, इधर भी ऊपर भी 16, 16 दैट इज 1, तो करेक्शन फैक्टर आ गया है आपका 1। नेक्स्ट है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स में हम टेबल कौन सी लेंगे, सेकेंड टेबल दैट इज स्क्वायर्स टेबल। फाइन, जिसमें आपको क्या लेना है, इसका जो हमने स्क्वायर्स किए थे इन सबका ये जो टोटल कर लिया था कॉलम वाइज, उन सबका टोटल लेना होता है। मतलब क्या हो गया आपका, सम ऑफ C1 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C2 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C3 स्क्वायर प्लस सम ऑफ C4 स्क्वायर। फाइन, माइनस करेक्शन फैक्टर, सबका टोटल क्या आ रहा है आपका 114 माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 1, तो वैल्यू आ गई आपकी 113। फाइन, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम n स्क्वायर -1, स्मॉल n दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन द रो या कॉलम, कुछ भी ले सकते हैं। एज यू नो लेटिन स्क्वायर्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होते हैं। फाइन, तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द रोज कितने हैं, दैट इज 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर -1 दैट इज 16 -1 15। नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन द कॉलम्स। इससे पहले हमने कैलकुलेट किया था TSS, जिसमें हमने टेबल ली थी स्क्वायर्स टेबल,
और अब हमें कौन सी टेबल लेनी है, जो फर्स्ट इनिशियल टेबल है वो लेनी है, स्क्वायर टेबल नहीं लेनी है। फाइन, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा C1 का होल स्क्वायर दैट इज 4 प्लस सिग्मा C2 का होल स्क्वायर, सिग्मा C2 का होल स्क्वायर 0 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा C3 का होल स्क्वायर, सिग्मा C3 का होल स्क्वायर दैट इज 3 का होल स्क्वायर, सिग्मा C4 का होल स्क्वायर दैट इज -3 का होल स्क्वायर। फाइन, divided by NC1 that means number of items in column 1, number of items in column 2, number of items in column 3 and so on। तो इन सब में जितने भी कॉलम्स हैं उनमें नंबर कितने हैं आइटम्स के, 1 2 3 4, तो सब जगह हमारा 4 आ चुका है माइनस करेक्शन फैक्टर। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 8.50 माइनस 1 दैट इज 7.50। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए आप क्या लेंगे, C-1, टोटल कॉलम्स कितने हैं आपके 4 -1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई आपकी 3। पर हमने सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन द कॉलम्स फाइंड आउट किया, सेम वैसे ही सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन रोज फाइंड आउट होगी। इनिशियल टेबल फर्स्ट है हमारी जिसमें हमें क्या लेना है, R1 R2 R3 R4। फॉर्मूला होगा हमारा सिग्मा R1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R1 प्लस सिग्मा R2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R2 प्लस सिग्मा R3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R3 प्लस ये बाद में आएगा हमारा सिग्मा R4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n R4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन n की सबकी वैल्यूज हमने लिख दिए दैट इज 12 1 -6 एंड -3। n R1 दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स इन रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, सब में 4 आइटम्स हैं आपके 1 2 3 4, तो सब जगह 4 आ गया है। इसको सॉल्व किया, आपकी वैल्यू आ गई है 47.50 माइनस करेक्शन फैक्टर जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था, फाइनली आंसर आ गया 46.50। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फॉर्मूला होगा, R-1, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है आपकी 4 -1 दैट इज 3। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट्स, तो ट्रीटमेंट्स के लिए आपको क्या स्टेप लेना होगा, आपको टेबल में ट्रीटमेंट्स लिखने होंगे। तो आपकी जो आंसर की फर्स्ट टेबल बनी हुई है उसको आपने एज इट इज लिख देना है। फाइन, और ये जो ट्रीटमेंट्स लिखे गए हैं वो आपको क्वेश्चन में जो टेबल गिवन है उससे लिखना है। तो आप देखेंगे कि वहाँ क्वेश्चन में यहाँ पे यही ट्रीटमेंट गिवन है, CBAD ADCB BADC, जो कि हमने क्वेश्चन की टेबल से लिख लिए हैं। फाइन, अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट के कैलकुलेशन के लिए हमें क्या करना है, अब हमें ट्रीटमेंट वाइज लेना है। तो A ट्रीटमेंट, B ट्रीटमेंट, C ट्रीटमेंट और D ट्रीटमेंट, इनको हमने यहाँ कॉलम वाइज अरेंज कर लिया है। जो हमने टेबल बनानी है वो इसी टेबल से बनानी है। कैसे, अब A ट्रीटमेंट की क्या वैल्यू है आपके पास 1, तो 1 आ गया है। सेकंड में A ट्रीटमेंट की वैल्यू है आपकी 0, तो ये आ गया 0। थर्ड रो में A ट्रीटमेंट की वैल्यू है -5, ये -5। फोर्थ में आपकी क्या है -4, ये हो गया -4। नेक्स्ट है B ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट रो में है वैल्यू 4। नेक्स्ट है -1, नेक्स्ट है 0, तो इधर 0। नेक्स्ट है 2, तो ये हो गया आपका 2। नेक्स्ट है C के लिए ये है आपकी 6, तो इधर है आपका 6। नेक्स्ट 2 2 1 1 और इधर भी 1। ऐसे ही हमने इनको ट्रीटमेंट वाइज अरेंज कर लिया है। डी के लिए है आपकी वैल्यू 1 1, इधर है 0, नेक्स्ट है 0, -2 फाइन। और इनका आपने क्या कर लिया है, ट्रीटमेंट वाइज टोटल कर लिया है एस से, ट्रीटमेंट 1 का, ट्रीटमेंट 2 का, ट्रीटमेंट 3 का। तो ये है हमारी ट्रीटमेंट की टेबल जिससे कि हम सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ट्रीटमेंट फाइंड आउट करेंगे।
टेबल हमारी बन चुकी है। नाउ सम ऑफ स्क्वेयर्स बिटवीन द ट्रीटमेंट्स, सिग्मा T1 का होल स्क्वायर दैट इज -8 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा T2 का होल स्क्वायर, सिग्मा T2 का होल स्क्वायर दैट इज 5 का होल स्क्वायर, सिग्मा T3 का होल स्क्वायर दैट इज 10 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा T3 का होल स्क्वायर दैट इज -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय NT1 दैट मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स इन ट्रीटमेंट 1। ट्रीटमेंट 1 में कितने आइटम है? 1 2 3 4, सब में ही 4 4 है, तो इसमें भी 4 4 4 आ चुका है माइनस करेक्शन फैक्टर दैट इज 1। तो इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 48.50। फाइन, ये हो गया ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए क्या फॉर्मूला होगा? वही T-1। ट्रीटमेंट कितने हैं आपके? 4 ट्रीटमेंट से 4 - 1 दैट इज 3। ऊपर जो भी आपने कैलकुलेशन किया है उसमें आपने TSS, TSC, TSR और TST फाइंड आउट कर लिया है, तो रिमेनिंग क्या बचा आपका? SSE। तो SSE का फॉर्मूला क्या हो गया? TSS माइनस SSC प्लस SSR प्लस SST। इनकी वैल्यूज आपने यहाँ लिख दी है, -113 से कर दिया, वैल्यू आ गई आपकी 10.50। ये हो गया SSE, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ रेसिडुअल्स। नाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2। n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन रो या कॉलम, तो रो में देखिए, रो और कॉलम सब में हमारे आइटम इक्वल ही होते हैं लेटिन स्क्वेयर्स में। तो ये हो गया 4 - 1 4 - 2। इसको सॉल्व किया, वैल्यू आ गई आपकी 6। इनोवा टेबल दैट इज सोर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स, एफ रेशियो, टेबल वैल्यू। बिटवीन द रोज इन सबको हमने ऊपर से लिख लिया है ये सारी वैल्यूज। नाउ MSS, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? SS सम ऑफ स्क्वेयर्स डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। 7.5 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 2.50। 46.50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 15.50। 48.50 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 16.17। 10.50 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1.75। तो ये कैलकुलेशन हो गया है आपका MSS का, मीन सम ऑफ स्क्वेयर्स का। नाउ द कैलकुलेशन ऑफ एफ रेशियो। एफ रेशियो के लिए क्या होगा? MSS जो भी है डिवाइडेड बाय रेसिडुअल। आप बेसिस क्या लेंगे इसमें? रेसिडुअल बेसिस लेंगे। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2.50 डिवाइडेड बाय 1.75 दैट इज ये 15.50 को भी किससे डिवाइड करना है आपको? रेसिडुअल से, 1.75 से डिवाइडेड बाय ये हो गया 16.75 दैट इज MST डिवाइडेड बाय 1.75 दैट इज 9.24। तो इनके फॉर्मूले क्या हो गए? ये हो गया MSC डिवाइडेड बाय रेसिडुअल का MSE, इसका फॉर्मूला MSR डिवाइडेड बाय MSE, इसका MST डिवाइडेड बाय MSE। बेसिस क्या है आपका? रेसिडुअल है। नाउ द टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू के लिए जैसे आपने एफ रेशियो के लिए बेसिस क्या लिया था ये, तो वैसे ही अब आपको एक तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या लेनी है? 3, और नेक्स्ट क्या देखना है? 6। तो इसके लिए क्या देखेंगे? 3 and 6, इसके लिए भी 3 and 6 और इसके लिए भी 3 and 6। दैट मीन्स ये देखिए इसका भी 3 है और इसका भी 6, इसका भी 3 है, इसका भी 6, दैट मीन्स सेम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम देखते हैं टेबल में। दिस इज अ एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें आपको क्या देखना है? 3 and 6 की वैल्यू। 3 ये है आपका, 6 इधर आ जाएगा, ये दोनों इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, तो वैल्यू है आपकी 4.76। तो ये आ गई आपकी टेबल वैल्यूज, ये है कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब हम कंपेयर करेंगे टेबल वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू से। टेबल वैल्यू हमारी ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, दैट मीन्स नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस।
और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ज्यादा हो जाती है टेबल वैल्यू से, दैट मीन्स देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस और हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। तो फर्स्ट जो केस है उसमें हमारी टेबल वैल्यू क्या है, ज्यादा है कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो यहाँ पे हमारी H नॉट एक्सेप्ट हो जाएगी, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। और इधर देखिए आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है, दैट मीन्स हमारी H नॉट रिजेक्ट हुई है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हुई है और सिग्निफिकेंट डिफरेंस है हमारा। देयर आफ्टर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा है तो सेम है, H अल्टरनेटिव आपकी एक्सेप्ट होगी और सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो कंक्लूजन इज the computed value of f for columns is less than the table value, hence the effect at 5% level of significance is not significant. The computed value of f for rows 8.85 which is more than the table value, therefore the effect of 5% level is significance can be regarded as significant. Effect of treatment is also significant as the calculated value of f is greater than the table value at the 5% level of significance.